میں فی الحال اپنوں سے دور رہنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے سرد آہ بھری۔ پچھلی بار میرے دشمنوں نے مجھے گھیرنے کی خاطر میرے رفقا، میرے عزیزوں کو بلا وجہ اذیت سے دو چار کیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی وہ اپنے گھٹیا پن کا مظاہرہ کریں۔ میں صورتحال کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ اسی طرح دور اندیشی سے کام لیا کرو، وہ چہک کر بولی۔ طنز کر رہی ہو؟ میں نے انکا کو تیز نظروں سے دیکھا۔ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے ہاتھوں کا تکیہ سر کے نیچے رکھ کر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ مسافروں کی نظریں بار بار میری سمت اٹھ رہی تھیں۔ میں نے نشست سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ میرے ذہن میں پھر اشوک کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ ابھر آیا۔ انکا نے مجھے اس کی بیوہ رنجنی کے بارے میں جو کچھ بتایا اسے جان کر مجھے دکھ ہوا۔ میں نے طے کر لیا کہ رنجنی کی مدد کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوں گا۔ میں اشوک کی پرسرار موت کا ذمہ دار نہیں تھا، لیکن رنجنی کے غم میں ضرور شریک ہو سکتا تھا۔ میں بڑی دیر تک حالات کے تانے بانے سلجھاتا رہا۔ میرے ذہن میں امریتا کا حسین تصور بھی ابھرا۔ میرے دل اسے ایک نظر اور دیکھنے کو مچلنے لگا۔ میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جو حالات پیش آ چکے تھے اس کے تحت امریتا سے ملاقات کا ماحول خوشگوار نہیں تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ انکا بھی اشوک کے معاملے میں الجھ کر اسے فراموش کر چکی تھی۔ میں امریتا کے حسین تصور سے دل بہلا رہا تھا جب ایک سوال بڑی سرعت سے میرے ذہن میں ابھرا۔ انکا نے اشوک کے سر پر مسلط ہونے کے بعد اس کو گرو کو للکارنے پر کیوں مجبور کیا تھا؟ کیا وہ گرو وہی تھا جس کا ذکر امریتا نے کیا تھا، یا انکا کا اشارہ کسی اور گرو کی طرف تھا؟ خواتینو حضرات توجہ فرمائیں، مائک پر اعلان شروع ہوا۔ میں اس فلائٹ کی سینئر ایئر ہوسٹس اسٹیفی جان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنی نشستوں کو درست کر لیں اور سیفٹی بیلٹ باندھ لیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اب سے 15 منٹ بعد ہم بمبئی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے۔ میں کیپٹن کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے برٹش ایئر لائن کے ذریعے سفر کیا اور آئندہ بھی ہمیں خدمت کا موقع دیتے رہیں گے۔ خواتینو حضرات، پرواز کے دوران جو اتفاقیہ حادثہ پیش آیا ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ اپنی نشستیں درست کر لیں، سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور جہاز جب تک رک نہ جائے اپنی نشستوں پر اطمینان اور سکون سے بیٹھے رہیں۔ شکریہ۔ اعلان کے مطابق ٹھیک 15 منٹ بعد طیارے نے لینڈ کیا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ انکا بھی بیدار ہو گئی۔ سید مجذوب کی لاٹھی بے دستور میرے ہاتھ میں تھی۔ مسافروں کے چہروں پر اب سکون نظر آ رہا تھا۔ جہاز کے رکنے کے بعد مسافروں نے اپنا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ پہلے فرسٹ کلاس اور پھر بزنس کلاس کے مسافروں کو اترنے کی اجازت ملی۔ میرے اختیار میں ہوتا تو اڑ کر امریتا تک پہنچ جاتا، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی۔ کچھ دنوں دیر بعد اکانومی کلاس کے مسافروں کی طویل قطار میں بھی حرکت پیدا ہو گئی۔ میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھنے لگا۔ جہاز کے بعد برج کے گزر کر وسیع ہال میں پہنچا تو وہاں پولیس کی بھاری تعداد پہلے سے موجود تھی۔ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہاتھ میں بیج لیے سینہ تانے کھڑا تھا۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی لگی۔ اس کے ساتھ 2 انسپکٹر بھی تھے۔ جہاز کے عملے اور رنجنی کی نشاندہی پر 4 مسافروں کو روکا گیا۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ باقیوں کو جانے کی اجازت مل گئی۔ رنجنی کی حالت غیر ہو رہی تھی، اس لیے اسے باہر لے جایا گیا۔ ڈپٹی اور اس کے ساتھ انسپکٹر مجھے اور میرے ساتھ رکنے والے باقی 3 مسافروں کو نگاہوں میں ٹٹولتے رہے۔ ڈپٹی کی نظر بار بار میری جانب اٹھ رہی تھی۔ وہ میرے ہاتھ میں دبی لاٹھی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ دبی زبان میں انسپکٹروں کے ساتھ ساتھ خسرو پھسر بھی کر رہا تھا۔ میرے لیے وہ سچویشن نئی نہیں تھی۔ پہلے بھی متعدد موقع پر پولیس سے میرا واسطہ پڑ چکا تھا۔ میں چاہتا تو ان کے ذہنوں کو تسخیر کر کے ان کے نگاہوں کے سامنے سے گزر جاتا۔ وہ مجھے روکنے کی ہمت نہ کر سکتے، لیکن بعد میں میری تلاش شروع ہو جاتی اور بات بڑھ جاتی۔ میرے ساتھ مفرور کا دم چھلا لگا دیا جاتا۔ چنانچہ میں صبر سے کام لیتا رہا۔ دوسرے 3 افراد خاصے مضطرب نظر آ رہے تھے۔
खास तौर पर भारी डेल डोल वाले उस शख्स पर लर्जा सा तारी था जिसने पतलून उतारते वक्त अशोक को ललकारा था। हमारे पासपोर्ट पुलिस ने कब्जे में ले लिए। उनकी नजरें पासपोर्ट में दर्ज जरूरी कवायद पर मंडला रही थीं। 1.5 घंटा गुजरने के बाद हम पुलिस की कार में किसी थाने में ले जाया गया। थाने पहुंचने तक डिप्टी या इंस्पेक्टरों ने हमसे किसी किस्म की पूछगछ नहीं की, मुहज्जब अंदाज में पेश आते रहे। थाने पहुंचकर हमें एक कमरे में बिठा दिया गया। वो मसला गार्ड हमारी निगरानी पर तैनात कर दिए गए। इनका मेरे सर पर बार बार पहलू बदलती रही। उसकी बेचैनी दीदनी थी। कभी वो कुछ देर के लिए मेरे सर से उतर जाती, कभी दोबारा आ जाती। किस इज़्तिराब से दो चार हो मेरी जान। मैंने उकताहट दूर करने की खातिर इनका को प्यार भरे लहजे में मुखातब किया। तुमने डिप्टी को पहचाना? हाँ, मैं बेपरवाही से बोला। सूरत कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुम्हारी इसकी मुलाकात शब्बन खान के कमार खाने पर अड्डे पर हो चुकी है। उस वक्त ये इंस्पेक्टर था। बड़ी चलता पुर्जा आदमी है, इनका ने मैनीखेज लहजे में कहा। इसकी तरक्की में उसकी खूबसूरत और नौजवान बीवी सरोजनी का भी बड़ा अमल दखल है। पहले ये एक छोटे से मकान में रहता था। सरोजनी से शादी करने के बाद इसकी किस्मत की लॉटरी खुल गई। कई हकदार अफसरों को नजरअंदाज करके इसे इंस्पेक्टर से डिप्टी बना दिया गया। अब चौपाटी के एक अपार्टमेंट में रहता है जहां बड़े बड़े करोड़पति रहते हैं। बड़ी इकाइयां और कमीना खिसलत है, मीठी छुरी की तरह। सरोजनी की वजह से ऊंचे हलकों में भी दूर दूर तक पहुंच रखता है। उससे मोहतात रहने की कोशिश करना थाने में बर्फ खाने की चमार की तरह अकड़ता है। अफसरों से भी नहीं डरता। घर पर सरोजनी को लक्ष्मी समझकर उसके तलवे चाटता रहता है। तुम सरोजनी के सिलसिले में मेरा इश्तियाक बढ़ा रही हो, मैंने सरसरी आवाज में जवाब दिया। फिक्र मत करो, मैं उसे भी तुम्हारी आगोश में मचलने पर मजबूर कर दूंगी। मैंने इनका ने चटखारे ले लेकर सरोजनी की बातें करता रहा। वो मुझे डिप्टी और सरोजनी के बारे में एक एक बात तफसील से बताती रही। अंदर से बुलावे आने शुरू हो गए। बारी बारी एक शख्स को एक वक्त में तलब किया गया। मेरा नंबर सबसे आखिर में आया। इनका पहलू बदलने लगी। मैं उसके इज़्तिराब का मकसद समझ रहा था। सरोजनी के जिक्र के दौरान वो कई बार निगाहों में दरख्वास्त कर चुकी थी कि मैं खुद को काबू में रखूं, बेलगाम होने की कोशिश ना करूं, जोश से परहेज करूं, होश से काम लूं। मैंने उसे खुलकर कहने का मौका नहीं दिया। सरोजनी का जिक्र मेरे लिए ज्यादा लज्जत अंगेज था। पुलिस से मेरी पुरानी शनासाई थी। मैंने जिम के फॉरेन हाउस में 2 माह तक इर्तिकाद और मराकबे की जो मशकें की थीं, उसके बाद बहुत सारी कुव्वतें हासिल कर ली थीं और मुझे किसी बात का डर या खौफ नहीं था। डिप्टी के कमरे के बाहर मुझे 20 मिनट तक खड़ा रखा गया। मैं समझ रहा था कि नफ्सियाती हरबों से काम लिया जा रहा है। मैंने कोई एहतजाज नहीं किया। दीवार से टेक लगाए इनका से सरोजनी की बातें करता रहा। जब दरवाजे पर खड़े संतरी ने इशारा किया तो मैंने कदम बढ़ाए। ये लाठी बाहर छोड़ दो, संतरी ने मुझे टोका। इसका लहजा तौहीन अमीज था। नहीं, मैंने फैसला कुन लहजा इख्तियार किया। ये लाठी मेरे साथ जाएगी। इनका तेजी से मेरे सर से उतर गई। संतरी का रवैया यकलख तब्दील हो गया। नाराज क्यों होते हो महाराज? तुम लाठी ले जाना चाहो तो बड़े शौक से ले जाओ। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। डिप्टी एक मेज पर बैठा था। एक इंस्पेक्टर उसके बाएं हाथ पर मौजूद था। कमरे में उन दोनों के सिवा मुझे कोई और नजर नहीं आया। मैं कदम बढ़ाता मेज के करीब पहुंचकर रुक गया। इनका मेरे सर पर दोबारा आ गई। डिप्टी की तेज निगाहें मेरे चेहरे पर चुभने लगीं। इंस्पेक्टर ने एक नज़र डाली लाठी पर, फिर सपाट लहजे में बैठने को कहा। मैं खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया। मेरा पासपोर्ट सामने मेज पर मौजूद था। मुझे बुलाने से पेशतर शायद वो दोबारा उसमें दर्ज मामूलात को खंगाल चुके थे। तुम्हारा शुभ नाम? डिप्टी ने संभल कर मीठे सुरों में गुफ्तगू का आवाज किया। खाकसार को जमील अहमद के नाम से याद किया जाता है। जमील अहमद खान। उसने मेरे नाम को दोहराते हुए अपनी याददाश्त को खरीदा। उसके तेवर बदलने लगे। मैं शायद तुमसे पहले भी कहीं मिल चुका हूँ। ये तुमने क्या गजब कर दिया? इनका ने मुझे गलती का एहसास दिलाया। पासपोर्ट में तुम्हारा नाम दौलत अली दर्ज है। मुझे भी जल्दबाजी का एहसास हो गया, मगर तीर कमान से निकल चुका था।
اس की वापसी अब मुमकिन नहीं थी। मैंने बौखलाने की गलती नहीं की। डिप्टी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं मसरूफ आदमी हूँ, देश बदेश फिरता रहता हूँ, रोज़ाना सैकड़ों अफराद से मुलाकात होती है, पुलिस अफसरान की बड़ी तादाद भी मुझसे वाकिफ़ है, हो सकता है आपसे कभी मुलाकात हुई हो। तुमने अपना नाम जमील अहमद खान बताया है, मगर इंस्पेक्टर ने मुझे मशकूक नज़रों से देखा। मैं उसका मकसद समझ गया। उसे मज़ीद कुछ कहने का मौका देना मुनासिब नहीं था। मैंने मुस्कुराकर खुद इकरार कर लिया, पासपोर्ट में मेरा नाम दौलत अली दर्ज है, आप शायद यही कहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन तुमने, ये मेरी मजबूरी है इंस्पेक्टर। मैंने लापरवाही से शाने उचकाते हुए उसकी बात फिर काट दी। आप इसे कोई भी रंग दे सकते हैं। इंस्पेक्टर मेरी साफ गोई पर सटपटा गया। डिप्टी ने असल मौजू छेड़ दिया, क्या तुम्हें इल्म है कि हमने तुम्हें यहाँ तक लाने की जहमत क्यों गवारा की? उसके लहजे में रौनक थी। जी हाँ, मैंने अपने अंदाज़े गुफ्तगू में कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उस मुसाफिर जिसका नाम अशोक था, अचानक ही दीवानगी का दौरा पड़ा था। तफसील आपको मेरे साथ आने वाले दूसरे मुसाफिर भी बता चुके होंगे। अशोक की बेवा का कहना है कि तुमने अशोक पर लाठी से हमला किया था। डिप्टी की तेज नज़रें मेरे वजूद का एक्सरा करने में मसरूफ़ थीं। जहाज़ में अफरा तफरी फैल रही थी। अमले के अफराद भी गवाही देंगे कि मरने वाला किसी के काबू में नहीं आ रहा था। मैंने महज डराने की खातर उस पर लाठी का एक हल्का सा वार किया था। जमील अहमद खान या दौलत अली? डिप्टी ने पहलू बदल कर कदरे दुरुस्त लहजे में सवाल किया, क्या ये दोनों मुसलमानों के नाम नहीं? मैंने कब इनकार किया? मैं मुस्कुरा दिया। डिप्टी की पेशानी शिकन आलूद हो गई। अशोक ने मरते वक्त में महाराज कहकर मुखातब किया था, कुछ और बातें भी की थीं। जी हाँ, मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता, परंतु ऐसा ही जान पड़ता है जैसे उसकी बुद्धि में कोई गड़बड़ विष पैदा हो गई थी। मैंने महाराज के हवाले से ठीठ हिंदी में जवाब दिया, सच क्या है परमात्मा जाने। हिंदू अच्छी खासी बोल लेते हो। डिप्टी के लहजे में गहरा तनस था। कहाँ से सीखी? भारतवर्ष में जन्म लिया, यहीं पला बड़ा, परवान चढ़ा, आप जैसे महापुरुषों की सभा में उठ बैठा तो बोली भी आ गई। अशोक ने तुम्हें महाराज क्यों कहा था? डिप्टी ने पैंतरा बदलकर दरियाफत किया। मरने वाला तो धरती से सारे संबंध तोड़कर भगवान को प्यारा हो गया। उसके मन में क्या था वही बता सकता था। मैंने मासूमियत से कहा। डिप्टी इलाके अलावा इंस्पेक्टर भी तलमला कर रह गया। संभलो जमील, इनका ने मेरे कान में सरगोशी की, तुम्हारी बातें जलती पर तेल का काम कर रही हैं। तुम चिंता मत करो इनका रानी, मैंने ठोस लहजे में जवाब दिया। इस वक्त अगर मैं डर गया तो इनके हौसले और बढ़ जाएंगे, जिन्होंने तुम्हारी नजरों के सामने धुएं की चादर तान दी थी। इनका जवाब हमेशा पत्थर से दिया जाता है। डिप्टी कितने पानी में है ये मैं भी देख रहा हूँ। इनका के कुछ कहने की बजाय होंठ भींच लिए। डिप्टी ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर पीछे करके दो टांगे उठाकर मेज के कोने पर रख दी। इस तरह वो मुझे बावर कराना चाहता था कि मैं उसकी तहवील में हूँ। मैंने ज्यादा जुबान दराजी की तो वो अपने सिपाहियों को तलब करके मेरी चमड़ी उधेड़ने का फरमान भी जारी कर सकता था। उसकी निगाहों में नफरत और हकारत के मिले जुले तासरात उभरने लगे। थोड़े तवक्कुफ के बाद उसने सरसराते लहजे में कहा, जिस जगह तुम बैठे हो उसे थाना कहते हैं और मैं यहाँ का डीएसपी हूँ। यहाँ केवल मेरा हुक्म चलता है। मेरे एक इशारे पर अच्छों के कसबल निकाल दिए जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो ना? डिप्टी का आखिरी जुमला मेरे लिए खुला चैलेंज था। मैं कमजोरी दिखाता तो वह और सर चढ़ने की कोशिश कर देता। मैं उसे बताना चाहता था कि वह किस शख्स से दुश्मनी मोल ले रहा है। मैंने कोई जवाब देने की जहमत गवारा नहीं की। उसे तेज नजरों से घूरने लगा। इनका मेरे सर पर कसमसाने लगी। इंस्पेक्टर की पेशानी पर भी बल नुमाया हो गए। वो डिप्टी का चहेता लगता था, इसीलिए बोल पड़ा, शराफत की जुबान नहीं समझोगे तो हमें मजबूरन तुम्हारे साथ दुरूसा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। तुम अपनी चोंच बंद ही रखो इंस्पेक्टर। मैंने पूरे तमतराक से इंस्पेक्टर को मुखातब किया। जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बच्चों का दरमियान में बोलना अच्छा नहीं लगता। इंस्पेक्टर को मुझसे इतने तलख जवाब की तवक्का नहीं थी। वो गुस्से में कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। इनका एक वक्त में किसी एक ही शख्स को निशाना बना सकती थी। इंस्पेक्टर को बेकाबू होता हुआ देखकर तेजी से मेरे सर से उतर गई।
जाते जाते उसने दबी जबान में फिर मुझसे होश बरकरार रखने की दरख्वास्त की। मैंने संजीदगी से कहा, इनका रानी, तुम कुछ देर के लिए इंस्पेक्टर की निगाहों पर पर्दा डाल दो, उसकी कुव्वत समात मुतअत्तल कर दो, डिप्टी को मैं संभाल लूंगा। सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होने लगी। इंस्पेक्टर को गुस्से में खड़ा होता हुआ देखकर डिप्टी भी आपे से बाहर हो गया। खून ख्वार गुर्रा कर बड़े लहजे में बोला, तुम अपनी औकात से बढ़ रहे हो महाशय, दिमाग ठंडा रखो वरना तुम्हारी सारी अकड़फों दूसरे रास्ते से निकलवा दूंगा। डिप्टी, मैंने जवाब में उसे गजबनाक नजरों से घूरा। तुम जिस कुर्सी पर बैठे अकड़ रहे हो, जानते हो ये तुम्हें किसके कारण मिली है? वो सुंदरती मेरे कहने पर तुमसे शादी ना करती तो तुम्हारा भविष्य भी खतरे में पड़ जाता। तुम जो चौपाटी के अपार्टमेंट की बजाय इस समय फुटपाथ की किसी झोंपड़ी में पड़े होते, वो फाइल तुम्हारी आरती में आखिरी कील साबित होती जिसमें तुम्हारी रिश्वतखोरी की तमाम राम कहानी मौजूद थी। मैं सरोजनी के कहने पर रिकॉर्ड रूम से वो फाइल गायब ना कराता तो अब तक तुम्हारी पतलून ना जाने कब की उतर चुकी होती। मैं इनका की फराहम करदा इत्तला से फायदा उठाता रहा। डिप्टी की आंखें पटपटाने लगीं। मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। वो समुंदर की झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर बुत बना खड़ा रहा। इनका के तेज पंचों ने उसको यकीनन काबू कर लिया होगा। डिप्टी ने अपने पैर मेज से हटाकर दर्जीदा नजरों से इंस्पेक्टर की तरफ देखा। शायद ये बात उसे खटक रही थी कि मैंने एक मतहत के सामने उसका भांडा फोड़ दिया था। उसे शशदर देखकर एक और वाकया मौका मेरे हाथ आ गया। उसकी चिंता मत करो, मैंने बड़े एतमाद से कहा। मैंने उसके कानों पर हाथ जमा रखा है। जब तक मैं ना चाहूं ये हमारी बातें नहीं सुन सकता। तुम डिप्टी को मेरी बात का यकीन नहीं आया। वो मकसमे में गिरफ्तार था। मैंने इंस्पेक्टर को कमजोर पड़ता देखकर एक और भरपूर ज़रब लगाई। अपनी लाठी उठाकर इंस्पेक्टर की नजरों के सामने लहराता हुआ बोला, कुछ पटाई दे रहा है इंस्पेक्टर, या अंधे हो गए हो? अभी बड़े गुस्से में सांप की तरह बल खाकर उठे थे, क्या वही नाग सूंघ गया तुम्हें? बुत बने खड़े क्या देख रहे हो? एक ही जंतर में चित्त हो गए। देख लिया चूंच खोलने का अंजाम। वर्दी के जाम में बड़े लाल पीले हो रहे थे। अब तुम्हारी तुरम खानी कहाँ अटक कर रह गई? मैं इंस्पेक्टर की शान में गुस्ताखियां करता रहा। डिप्टी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने मुझसे शुभन खान के बारे में कोई सवाल नहीं किया। मैंने लाठी नीचे रखकर डिप्टी को बाजारी अंदाज में आंख मारते हुए कहा, मेरी तुम्हारी मुलाकात वहीं हुई थी। तुम उस कमार खाने और अड्डों पर किस लिए जाते थे? कुछ याद आ रहा है या मैं बताऊं? मुझसे भूल हो गई। डिप्टी ने बुतलों की तरह हथियार डाल दिए। शुभन खान के हवाले पर मुमकिन है उसे याद आ गया हो कि वो हाँ किन किन लड़कियों की तलाश में गया था। मेरी उसकी मुलाकात किन हालात में हुई थी, लेकिन उसके दिल में चोर था, हराम की कमाई का खौफ। मरते वक्त तक रिश्वत खोरों के जहन से किन खजूरे की तरह लिपका रहता है। डिप्टी तो अभी जिंदा था। शेर के सामने सवा शेर आ जाए तो वो दुम दिबा लेता है। डिप्टी भी इन्हीं कैफियत का शिकार था। आरजी से कहने लगा, मैं आपको पहचान नहीं सका, वरना बड़े घाटे में रहते। मैंने मेज से अपना पासपोर्ट उठाकर जेब में डालते हुए पूछा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम मेरी चमड़ी उधेड़ने का अरमान पूरा करोगे या? मैंने दीदा दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। डिप्टी ने हाथ जोड़ लिए। मैं आपको बगैर जल पानी के नहीं जाने दूंगा। आपकी सेवा करके मुझे खुशी होगी। सेवा करने के मौका तुम्हें मिलते रहेंगे। मैंने उठते हुए कहा, जब तक सरोजनी का ध्यान रखोगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रखेगा। मैंने जिस दिन तुम्हारे सर से हाथ उठा लिया तुम्हारा जीवन कांटों में उलझ जाएगा। नहीं महाराज नहीं। डिप्टी हाथ बांध कर घगयाने लगा। सेवक तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं करेगा। इस बार माफ कर दो, दोबारा कभी भूल चूक नहीं होगी। अपनी जुबान में अपने आदमियों से भी कह देना कि मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश ना करे। मैंने सैया तान कर कहा, अब कुछ दिनों रहूंगा तुम्हारी बंबई में। हो सकता है तुम्हारी सुंदरी के दर्शन करने भी आ जाऊं। बड़ी कृपा होगी। डिप्टी ने आर्जी का इजहार किया। आपके आने से हमारी भागिया और खिल जाएंगी। सरोजना से अभी मेरा जिक्र मत करना। वो मेरा सुनेगी तो मिलने को बेचैन हो जाएगी। जो हुक्म महाराज।
मैं वापसी के लिए पलटा तो डिप्टी कदम बढ़ाता दरवाजे तक आ गया। वो मेरा बेदाम गुलाम बन चुका था। मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो डिप्टी ने बड़ी इंकसारी से दरख्वास्त की, महाराज मुझे क्षमा कर दिया तो मेरी इंस्पेक्टर की गुस्ताखी भी माफ़ कर दो, मैं उसे तुम्हारे बारे में समझा दूंगा। महाराज मुझे क्षमा कर दिया। धीरज रखो, मैंने ठोस लहजा इख्तियार किया। मेरे जाने के कुछ देर बाद तुम्हारा इंस्पेक्टर भी मेरी कष्ट से मक्ति पा जाएगा। उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, दोबारा होश में आने के बाद ये सब कुछ भूल चुका होगा। डिप्टी हाथ बांधकर खड़ा रहा। मैं मूंछों पर ताव देता कमरे से बाहर आ गया। थाने से बाहर निकलकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी। ड्राइवर को ताज होटल चलने की हदायत देकर पिछली निशस्त पर बैठ गया। कुछ देर बाद इनका भी सर पर आ गई। बड़ी मसरूर नजर आ रही थी। उसकी निगाहों में मेरे लिए प्यार ही प्यार भरा था। खामोशी से मेरे सर पर आलती पालती मारे बैठी मुझे वालहाना नजरों से देखती रही। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर मैंने इनका को छेड़ने की खातिर संजीदगी से कहा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी खुशी का मतलब, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है। क्या हुआ जमील? इनका ने पलकें झपकाते हुए पूछा। मुझसे भूल हो गई। मैं हाथ मदलने लगा। मुझे डिप्टी को उस वक्त मार देना चाहिए था जब उसने मुझे तिरछी नजरों से देखा था। तुमने अच्छा किया जो उसे माफ कर दिया। इनका ने मुझे एहसास दिलाने की कोशिश की। तुमने जिस अंदाज में उसकी दुखती रग पर हाथ डाला वो लाजवाब था। अब वो तुम्हारा गुलाम बन चुका है, आइंदा भी तुम्हारे काम आता रहेगा। जानते हो उस इंस्पेक्टर के होश में आने के बाद क्या कहा था? क्या वो अपनी खुशकिस्मती का इजहार कर रहा था कि अशोक की मौत की तफ्तीश के बहाने तुम्हारे जैसे धर्मात्मा से मुलाकात हो गई। मुझे हमवार करने की कोशिश मत करो। मैंने तय कर लिया कि पहली फुर्सत में डिप्टी का क्रिया कर्म कर दूंगा। मैंने बिगड़े हुए तेवर से जवाब दिया। इनका मुझे हैरत से घूरने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी ये अदा मुझे पसंद आई। इसी तरह शोक शोक बातें किया करो। क्या मतलब? मैंने उसे तेज नजरों से घूरा। मैं तुम्हारी इनका रानी हूँ जमील साहब, जो दिलों का भेद भी जान लेती है। इनका एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर बोली, क्या ये गलत है कि तुम जानबूझकर मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हो? मैं जवाब में मुस्कुरा दिया, फिर बड़े थोड़े तवक्कुफ से बोला, जानती हो इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं? तुम परेशान मत हो। इनका ने पांव पिसका कर लापरवाही से जवाब दिया, ताज में तुम्हारे नाम से कमरा बुक हो चुका है। एक नई झिलमिलाती कार तुम्हारे मुसर्रफ में रहा करेगी। जब तुम मैनेजर से मिलोगे तो तुम्हें अपनी अहमियत का एहसास हो जाएगा। मैं जानता हूं तुम हर नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हो। गलत समझ रहे हो, उसने संजीदगी से जवाब दिया। ताज में तुम डिप्टी के मेहमान की हैसियत से रहोगे। उसने मैनेजर को फोन करके तुम्हारे लिए खास हदायत दी हैं। ताज का मैनेजर छोटे मोटे अफराद को घास भी नहीं डालता, लेकिन उसकी भी कुछ कमजोरियां हैं जो डिप्टी से दबता है। बड़ा चलता पुर्जा आदमी है, डिप्टी के सामने दुम भी हिलाता रहता है, उसके जरिए अपना काम भी निकालता रहता है। ताली दोनों हाथों से बजती है। तुम भी ये गुण सीख लो। नसीहत कर रही हो, मशवरा दे रही हूँ, मानना ना मानना तुम्हारे इख्तियार की बात है। मैंने इनका से यही नहीं पूछा कि डिप्टी को मेरे ताज होटल में ठहरने का इल्म किस तरह हुआ। मुझे यकीन था कि इनका ने अपने पंजे उसके सर में चुभोकर अपना गुलाम बना लिया होगा। फिर डिप्टी के फरिश्ते भी उसके किसी हुक्म की पैरवी करने से इनकार नहीं कर सकते थे। इनका थकी थकी सी थी। उसने मेरे सर के बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली और जल्द ही उसके हल्के हल्के खराटे मेरे कान में गूंजने लगे। बम्बई की जानी पहचानी शाहराहों से गुजरते हुए मुझे तज़ीन याद आ गई। माजी के धुंधलकों से गर्द छिटने लगी। मुझे याद आया कि मैं चचा जान के साथ बनारस जाने की खातर फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सवार था। डब्बों में हम दोनों के सिवा कोई तीसरा नहीं था। तज़ीन अलाहाबाद के स्टेशन से हवा के एक मुअत्तर खुशगवार झोंके की तरह हमारे डब्बे में दाखिल हुई और मैं उसे देखता रह गया। उसकी उम्र बेमुश्किल 17-18 के दरमियान होगी, लेकिन वह हुस्ने मुजस्सम नजर आ रही थी। उसकी एक एक अदा काफिराना थी। उम्र उसकी बाली, कद सरू जैसा, चेहरा शादाब, आंखें में ख्वाब, अदाए दिल बुराना, खदो खाल तीखे, चाल मस्ताना,
जुल्फी नागनों की तरह बल खाती हुई, आंखें हरनियों जैसी अंदाज में तमक्कनत। वो कुदरत की तख्लीक का एक मनफरद मासूम और हसीन शहकार थी और मैं हुस्न परस्त था। वो जिंदगी की नाजुक दौन पर किसी फटखिली की मानद खिल उठने के मराहल से गुजर रही थी। मेरे अंदर एक हलचल सी पैदा हुई। तस्कीन कोई बात जरूरी थी कि मेरी नज़रों में उसके लिए मैल नहीं था। मेरा दिल उसकी तरफ खींच रहा था, मगर हवस के जज्बों में एक मामूली सा अर्ताश भी नहीं हुआ। मैं उसकी मासूमियत में गुम होने लगा और मुझे अपनी नरगस याद आ गई। नरगस का साया तज़ीन के खदो खाल उसके अंग अंग में मौजूद था। वो नरगस का अक्स नजर आ रही थी। मेरे दिल के जख्म हरे होने लगे। इनका ने बताया कि वह लखनऊ के एक तवाइफ की बेटी है। आला आबाद में अपने ही पहले मुजरे के सिलसिले में आई थी। लाखों दिलों को घायल करके जा रही थी। लखनऊ के बड़े बड़े इज्जतदार नवाब और रईसजादे उसके लिए बढ़ चढ़कर बोलियां लगा रहे थे। मुझे इनका की बात पर यकीन नहीं आया। तज़ीन के मासूम भोले बाले चेहरे की पाकीज़गी की गवाही दे रही थे कि उसके जिस्म को किसी मर्द का हाथ नहीं लगा। अलबत्ता तज़ीन के साथ जो ढेर उम्र की औरत डब्बे में सवार हुई थी, वो बड़ी घाघ और जहां दीदा नजर आ रही थी। खेली कूदी मालूम होती थी। जब तक तज़ीन मेरे हम सफ़र रही, मेरी बेचैन नज़रें उसके चेहरे की मासूमियत, उसके महकते मुस्कुराते वजूद का तवाफ करती रहीं। बाद में कुलदीप ने बताया कि तज़ीन भी तवाइफ की आज़ादी है। उसकी माँ ने पेशा तर्क करके एक रईस के साथ शादी कर ली थी। तज़ीन ने दुनिया में जब आंख खोली, इस वक्त उसकी माँ का ताल्लुक किसी बाला खाने से नहीं था, लेकिन उसकी खाला अशरफी बेगम ने बहन से अपना इंतकाम लेने की खातिर उसका घर उजाड़ दिया, तज़ीन को तवाइफ बना दिया। मगर उसने जल्दबाजी में तज़ीन की सौदेबाजी नहीं की। उसका भाव बढ़ाने की खातिर अपने तजर्बों से काम लेती रही। दरमियान में मैं आ गया। मैंने अपनी नरगस का पर तू समझकर अशरफी बेगम से छीन लिया। बड़े हंगामे हुए। बड़े बड़े नवाबीन ने मुझे दरमियान से हटाना चाहा। अशरफी बेगम ने अपने पुराने आशनाओं की गैरत को ललकारा, गुंडों को पीछे लगा दिया। मैंने हार तस्लीम नहीं की। जो भी सामने आया उसे ठोकर मारकर रास्ते से हटाता गया। कुलदीप भी तज़ीन से बेटी की तरह प्यार करने लगी। फिर मैं उसे सैयद गौस के महफूज हाथों में सौंप कर दोबारा दूसरे बखेड़ों में उलझ गया। अब बम्बई में आया तो तज़ीन और नरगस की यादें फिर तड़पाने लगीं। टैक्सी रुकी तो मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। ताज होटल के में टैक्सियों का दाखिला ममनू था, लेकिन मुझे नहीं रोका गया। ताज होटल का मैनेजर मेरे साथ टैक्सी में बैठ गया। वो मेरे इस्तकबाल को पहले से बाहर मौजूद था। मैंने सर पर नजर डाली, इनका मौजूद नहीं थी। मैं समझ गया कि बम्बई जैसे शहर में ताज जैसे होटल का मैनेजर क्यों मेरे सामने बिछा जा रहा था। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो मैनेजर ने एक पिस्ता कद के आदमी को मेरे सामने पेश किया। वो दोहरे जिस्म का एक हट्टा कट्टा शख्स था, जिसके चेहरे पर घनी मूछें खासी खतरनाक लग रही थीं। उसकी आंखों में नजर आने वाली खौफनाक चमक इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो खतरात से खेलने का आदी रह चुका है। मौत से डर कर भागना उसके असूल के खिलाफ रहा होगा। अकेला कई आदमियों पर भारी पड़ सकता था। अपने हुलिये और चेहरे के खतरनाक तासुरात के बरअक्स उसने बड़े ढंग का सूट पहन रखा था। कोट की जेब पर जर्द और सफेद रंग के मिली जुली रेशमी धागों से पी का अंग्रेजी हरफ कड़ा हुआ था। उसका नाम पृथ्वी है। मैनेजर ने महज़ब लहजे में पिस्ता कद वाले का तारुफ कराया। ये आपकी गाड़ी का ड्राइवर है, हमारे भरोसे का आदमी है। आप इस पर एतमाद कर सकते हैं। जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, इस्तकबालिया को मतला कर दें। ये आपको सदर दरवाजे पर गाड़ी समेत तैयार मिलेगा। डिप्टी से मेरा शुक्रिया अदा कर देना। मैंने शान बेनियादी से मैनेजर को मुखातब किया। अब मैं कुछ देर आराम करूँगा। मैनेजर पृथ्वी के साथ चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। सैयद मजदूब की लाठी अलमारी में रखी। फिर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया तो जहन का गुबार छटने लगा। मैं नहाकर बाहर निकला तो इनका सर पर आ गई। उसने मुझे बताया कि अलमारी में मेरे साहिब के बेशबार लिबास मौजूद हैं। मैंने एक हल्के लिबास का इंतखाब किया। अब क्या इरादे हैं? मैं बालकनी में कुर्सी पर बैठा तो इनका ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ शुगल करोगे?
ताज में आजकल एक रूसी ताइफा मुकीम है, एक से बढ़कर एक होश उड़ा देने वाली गुदाज जिस्म की हसीनाएं मौजूद हैं। पृथ्वी कैसा आदमी है? मैंने इनका की बात को नज़रअंदाज करके पूछा। क्या एक हिंदू पर एतबार किया जा सकता है? गुंडों, बदमाशों और दहशतगरों का कोई दीनो धर्म नहीं होता। इनका बोली, पृथ्वी बड़ी खूबियों का मालिक है, जूडो कराटे का माहिर है, हर किस्म के असला के इस्तेमाल से भी वाकिफ है, खंजर जनी की वारदातों में बड़े बड़े उस्तादों के कान कतर सकता है, दस्त बदस्त लड़ाई के फन से भी वाकिफ है, 2 साल की कैद मुशक्कत की सजा भी काट चुका है, किसी सदाए हुए शिकारी कुत्ते की तरह बालक के एक इशारे पर किसी का भी टैटनुमा दबोच सकता है। मालिक कौन है? होटल का मैनेजर। डिप्टी मिलजुल कर पृथ्वी की पुष्टपनाही करते हैं, लेकिन जिसकी ड्यूटी सौंप दी जाए उससे भी गद्दारी नहीं करता। इनका ने बड़े यकीन से कहा, फिर ठंड कर बोली, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम किसी और की बात क्यों करते हो? Come and fly away with me. Come and fly away.